Good morning, class 4 student. I am starting your chapter 13. Chapter 13, and its name is the Brahmin and the Crook. The Brahmin and Crook. Okay, so we will start. Once upon a time there lived a poor Brahmin priest in a village. He was holy, dutiful, and very superstitious. One day the Brahmin left for a neighboring village to collect a gift that he had been promised from a rich landlord. Finishing his job in the neighboring village, he was on his way back carrying his gift, a fat and healthy goat on his shoulder. While he was going on his way, three hungry crooks crossed his path. They saw the healthy goat on Brahmin's shoulder and whispered, "That is a very fat goat. Let us trick the Brahmin and take the goat away. We can then make a tasty dish out of it." They soon made a plan. The three of them went in separate way. The first one stopped and Brahmin and exclaimed in horror, "Oh my God! Such a respected priest and carry a dog on his shoulder. Don't you know that is a sin to touch a dog or a rooster or a donkey?" The Brahmin lost his temper. "You stupid fellow, are you blind? Cannot you see it is a goat, not a dog?" "Don't be angry," replied the first crook. "If you think it is not a dog, then please carry on it. But is not it ridiculous that you are carrying a dog?" The Brahmin hardly walked a few more yards when the second crook stopped the Brahmin and looked at him in shock. "How can a reputed priest like you carry a dead calf on the shoulder?" exclaimed the crook. The Brahmin yelled, "Are you blind too? This is a healthy and live God, and you say he is a dead calf? You are an ignorant fool." "All right, sir," said the second crook. "Please forgive me. Do as you please." "What is wrong with everyone?" wondered the furious Brahmin as he hurried toward his home. "The whole world has gone mad." Now it was the turn of the third crook to the Brahmin path. The third crook said, "Sir, why are you carrying a donkey on your shoulder? It is going to bring your misfortune." Now the Brahmin were confused. The three peoples have said the goat was something else. Have I been given a ghost that kept changing into a dog, a dead calf, or a donkey? He wondered. I do not want this creature. Before it turns into something else, I better get right on it. Confused and scared, he threw the goat to the ground and ran away from there. Coming out their hiding place, the crook took the goat and laughed at the stupidity of the Brahmin. कहता है कि एक ब्राह्मण रहता है, ठीक है, एक ब्राह्मण एक गांव में रहता है, जो कि मतलब पुजारी होते हैं ब्राह्मण लोग, ठीक है। तो वो एक गांव में रहते हैं, वो काफ़ी अपने कर्म, अपने कर्तव्य के प्रति मतलब कभी कार्यनिष्ठ हैं, लेकिन वो क्या है, अंधविश्वासी भी हैं साथ में। तो क्या होता है कि वो उस गांव को छोड़ के जब दूसरे गांव जाने लगते हैं, तो एक जो अमीर व्यक्ति होता है वो उन्हें एक मोटा, बहुत अच्छा मतलब स्वस्थ क्या देता है, एक बकरी देता है, ठीक है, कि आप इसे ले जाइए और आप इसका दूध वगैरह जो भी होगा आप उसे ये कीजिएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसे कंधे पे लेके और जाने लगते हैं दूसरे गांव, ठीक है। तो रास्ते में तीन धूर्त लोग, ठीक है, धूर्त किसे कहते हैं, जो अपना काम निकालने के लिए आपको कुछ भी कह के बेवकूफ़ बना सकता है, ऐसे लोग को ही क्या कहा जाता है, धूर्त कहा जाता है, ठीक है। तो तीन धूर्त लोग जब उस ब्राह्मण को देखते हैं एक बकरी के साथ, तो वो प्लानिंग करते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे क्या होगा, ये ब्राह्मण इस बकरी को यहीं पर छोड़ देगा और भाग जाएगा, ठीक है। तो भाई वो प्लानिंग सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है।
तो जब वो तीनों 3 रास्ते चले जाते हैं, उसके बाद जब वो ब्राह्मण जो है आगे बढ़ता है तो पहला धूर्त व्यक्ति जो है वो जाता है और कहता है कि अरे पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अपने मतलब कंधे पे एक डॉग को क्यों उठा के जा रहे हैं? आप तो इतने मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको तो डॉग डंकी ये सब को छूना भी पाप है और आप इसे कंधे पे उठा के जा रहे हैं। तो उन्हें गुस्सा आता है कि अरे ये बेवकूफ़ है क्या, मैं बकरी को लेके जा रहा हूँ और ये इसे डॉग बुला रहा है। तो वो कहते हैं अरे तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं है? ये डॉग नहीं है, ये बकरी है, समझे? चलो जाओ यहाँ से। तो वो कहता है अच्छा तो बकरी है, अगर आपको लगता है कि ये बकरी है तो ठीक है, मेरा क्या जाता है इसमें। और वो चला जाता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर एक दूसरा धूर्त उन्हें मिलता है और कहता है कि अरे पंडित जी आप तो बहुत आदरणीय हैं और ये क्या आप अपने कंधे पर मरे हुए बछड़े को लेके जा रहे हैं कि इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्हें फिर गुस्सा आता है कि अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, ये मरी हुई कल्प है, ये बछड़ा को कल्प बोलते हैं, गाय के बछड़े को कल्प बोलते हैं, ये मरा हुआ कल्प है, ये देखो तो ये तो जिंदा बकरी है, तुम पागल हो क्या, चलो जाओ यहाँ से। तो वो कहता है ओह सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी, वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जब दो मिलते हैं मतलब पंडित जी को, तो पंडित जी को थोड़ा सा मन में शंका हो जाता है कि अरे मैंने तो बकरी ली थी, लेकिन ये बकरी किसी को डॉग, किसी को मरी हुई कॉल्फ क्यों नज़र आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर वो जब आगे जाते हैं तो वो तीसरा धूर्त मिलता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये गधे को अपने कंधे पर बिठा के क्यों लेके जा रहे हैं? आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं और इस गधे को क्यों उठाया हुआ है आपने? तो वो कहते हैं कि अरे सच में बकरी नहीं है कि किसी जादू टोना से कोई कभी ये कुछ में बदल जा रही है, कभी ये कुछ में बदल जा रही है। किसी एक व्यक्ति को लगेगा कि मतलब गलत लगेगा, सबको गलत लग रहा है। किसी को ये मरी हुई कॉल्फ नज़र आ रही है, किसी को ये डॉग नज़र आ रहा है, किसी को ये डंकी नज़र आ रहा है। ये सही में ये किसी जादू टोनों का असर है। मैं अब इसे लेके नहीं जाऊंगा, ये ज़रूर मेरे धर्म को भ्रष्ट कर देगी। पता नहीं ये क्या आगे ये क्या और बन जाए, नहीं हो सकता है कि कुछ और बने तो मेरा कुछ और ही नुकसान कर दे। बस वो क्या करते हैं, उस बकरी को कंधे पर से उठा के नीचे फेंक देते हैं और खुद ही भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो वो जो तीनों धूर्त रहता है वो तो छुपा रहता है आसपास में, तो वो तीनों धूर्त आता है और उस बकरी को उठा लेता है और उनकी मूर्खता पर बहुत हंसता है। ठीक है, तो वो कहता है क्या, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डोंट बिलीव अदर ब्लाइंडली। आप अपने पे भरोसा रखिए, किसी दूसरे के कहने पर आप अपने डिसीजंस, अपने निर्णय मत चेंज कीजिए। क्योंकि लोग हैं, आजकल के जो लोग हैं ना, वो आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो आपके वेल विशर बन के अपना काम आपसे निकाल लेंगे और आपको क्या कर देंगे, फूल बना देंगे। ठीक है, तो आपने जो निर्णय लिया है आप सही हो, तो अपने आप पे विश्वास रखो, इट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर यू। और दूसरों के कहने पे अपने डिसीजन को चेंज नहीं करो। ठीक है, तो यही था हमारा लेसन, खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।